السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ قابل احترام معزز سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو رب العالمین ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں درد و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو اس کے بندوں تک بلا کمی و پیشی عملی نمونے کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، میں اور آپ جس مہینے سے اب گزر رہے ہیں، جو مہینہ میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کے آخری عشرے میں لگ بھگ پہنچ چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے آخری جمعہ میں صحابہ اکرام کو یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے برکتوں کو، اللہ کے وسعتوں کو لے کر کے آتا ہے۔ وہ تمام بندوں کے لیے جو سال بھر میں گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے رہے، اللہ کی معصیات میں زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارے، ان لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار کا ایک بہترین تحفہ لے کر کے آتا ہے۔ اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کر لو، اس کے لیے آپ مستعد ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اس کے لیے کہ آپ کمر کس لو کہ آنے والے مہینے کے برکتوں کو، رحمتوں کو، وسعتوں کو مکمل حاصل کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، معافیاں مانگ کر کے پاک اور صاف ہو جائیں گے ہر طرح کے گناہوں سے، حقوق اللہ سے بھی توبہ کریں گے اور حقوق العباد میں بھی معافیاں مانگیں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ رمضان کا آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو اس سے آگاہ کیا کرتے تھے، اسے بتایا کرتے تھے، توجہ دلایا کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ آنے والے مہینے کی تیاری تم پہلے سے ہی کر لو، آپ کے کاموں میں، آپ کی مصروفیتوں میں،
आगे पीछे करके इबादतों के लिए वक्त निकाला जाए, तिलावत के लिए वक्त निकाला जाए, बेकार बातों को छोड़ करके अल्लाह की रज़ा के लिए इबादतों में, ज़िक्र में, तिलावत में, तौबा और इस्तिग़फ़ार में वक्त को गुजारे। इसी मुनासिबत से मैंने समझा कि आज का जो जुमा होगा उसी की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाया जाए। उसका उन्वान इस्तक़बाल रमज़ान हो। अब रमज़ान के महीने की तैयारी करना, ईद की तैयारी है, रोज़ों की तैयारी है, अपने औक़ात में तब्दीली कर लेना है, आगे पीछे कर लेना है, ये तमाम चीज़ें रमज़ान की तैयारी में बंदे को लगाना है। याद रखें, तैयारी करने का मतलब लोगों ने गलत समझ लिया है। लोग आकर के तिजारतों में कैसे तिजारत को बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए, कैसे पीछे इबादतों से हट दिया जाए। ये रमज़ान का महीना जो होता है बरकतों वाला महीना होता है, गुनाहों के माफ़ी का महीना होता है। अपने तिजारत के औक़ात को, जो भी औक़ात हमारे होते हैं, मसरूफ़ियतों को आगे पीछे करके ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत के लिए लगाना, गुजारना, उसकी तैयारी करना, ये इस्तक़बाल रमज़ान है। अक्सर लोग ये समझते हैं पैसे जमा कर लेना, कपड़े ख़रीदना, घरों के अंदर अनाज और राशन को ला कर के भर लेना, फ्रिज को ला कर के भर देना, कपड़े लेने की तैयारी करना, ये सब अलग चीज़ें हैं। इससे सबसे हट करके एक अहम चीज़ हमारे लिए ये है कि शाबान के महीने के आखिरी अय्याम में चाँद को देखने की पाबंदी की जाए। उसको चाँद को देखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जो तरीक़े बताए हैं वह तरीक़े को अपनाया जाए। सबसे पहले चाँद के ताल्लुक़ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक इंसान को चाहिए कि वह रमज़ान के चाँद को देखने की कोशिश करे, देखने की पाबंदी करे। हर आदमी इस बात की कोशिश करे कि रमज़ान के चाँद को देखे। अगर चाँद कहीं भी नज़र नहीं आया, किसी को नज़र नहीं आया है, तो दूसरी शर्त ये बताई गई कि आप इत्तला ले लें उसको। कहीं से भी अगर आपको इत्तला मिल जाती है कि फ़लाँ बस्ती में फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त में चाँद को देखा गया है, उस खबर को ले लिया जाए और उस पर अमल कर लिया जाए। पहले चाँद देखने की कोशिश करना चाहिए। अगर चाँद नहीं, हमको नहीं दिखा है, ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया में कहीं भी नज़र ना आया हो। हमारी बस्ती में नज़र नहीं आया तो हो सकता है दूसरी बस्ती में नज़र आया होगा। लोगों ने दूसरे आलात जो साइंसी तरक्कियात है उसके ज़रिए से चाँद को देखा हो। तो अगर वहीं से भी हमको इत्तला मिल जाती है तो इस इत्तला को भी पा कर के हम रोज़े रखना चाहिए। दोनों भी ना हो, चाँद को ना देखा गया हो, ना उसके लिए शवाहिद मिलते हो, गवाही मिलते हो, कहीं इत्तला भी अगर ना मिलती हो, ये दोनों सूरतें ना रहने की सूरत में तीसरी जो सूरत है वो बताया गया कि 30 मुकम्मल कर लिया जाए। उसको शाबान के 29 तारीख को चांद देखने की कोशिश करें। अगर नज़र आ गया तो दूसरे दिन जो होगा वह रमज़ान होगा। अगर चांद हमको नज़र नहीं आया, कहीं दूसरी जगह भी अगर देखा गया है, उसकी इत्तला मिली है, तो उसे भी ले लेना चाहिए। 2 तरीक़े हो गए। तीसरा, ये 2 भी अगर ना मिले तो तीसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 रोज़े को तुम मुकम्मल कर लिया जाए उसको। ये तरीक़े हैं। सबसे पहले इसकी पाबंदी मुझे और आपको हर एक को करना चाहिए। इसके अंदर बड़ी गलतफहमी मेरे और आपसे हो जाती है। ये अलग बात कि उलमा का इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर जमहूर उलमा को अगर जमा करके देखा जाए तो सब लोगों की मुत्तफ़िक़ा राय यही है। अक्सर जमहूर उलमा की, हो सकता है 1-2 की राय अलग होगी, लेकिन अक्सर जमहूर उलमा की मुत्तफ़िक़ा राय ये है कि दुनिया के अंदर किसी भी कोने में अगर चाँद देखा जाए, उसकी इत्तला गवाहियों के साथ हमको अगर मिल जाए तो उसे मान लेना, उसे तस्लीम कर लेना। दूसरा जो दिन होगा वो रमज़ान का दिन होगा, तो उस दिन में आकर के हमको रोज़ा रख लेना चाहिए उसको। इसके अंदर गलत फहमियों की वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। किसी भी तरह से आप देख लो, दुनिया के अंदर बस वक्त का फ़र्क होता है, दिन का कहीं भी फ़र्क नहीं होता है। अब देख लीजिए, कहीं भी उठा करके वक्त का फ़र्क आता है। 2
1 या 2 घंटे का फ़र्क आता है, लेकिन दिन का फ़र्क नहीं आता है। ज़रा सोचने की बात यह है कि सऊदीया के अंदर आज जुमा का दिन है, तो सारे दुनिया में भी आज जुमा का ही दिन है। सऊदीया में जुमा का दिन हो और हमारे लिए जुमेरात का दिन हो, ये नामुमकिन बात है। वहाँ जुमा का दिन है तो हमारे लिए भी जुमा का दिन है। कल हफ्ते के दिन हमारे लिए होगा तो उनके लिए भी हफ्ते का दिन ही होगा। दिन नहीं बदलेगा, दिन का नाम नहीं बदलेगा, घंटे का फ़र्क हो सकता है कि कभी हम आगे हो जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे, या दूसरे ममालिक वाले वो हमसे भी पहले हो जाएंगे, हम उनसे भी पीछे हो जाएंगे। ये वक्त की तब्दीली है, ये वक्त का फ़र्क है। वक्त के फ़र्क की वजह से पूरे दिन को मुअक्खर कर देना, पूरे दिन को छोड़ देना, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ज़रा हम सोच करके देखें कि इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। वो नुकसानात में से एक नुकसान ये होता है, कई मर्तबा लोगों से हमने ऐसा सुना है, कई मर्तबा लोगों को नुकसान ये हुआ है कि महीना जो होगा या तो 29 का होगा या तो 30 का होगा, 28 का भी नहीं होगा, 31 का भी नहीं होगा, यानी 28 का भी नहीं होगा, 31 का भी नहीं होगा, अरबी महीनों के हिसाब से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बताई। अक्सर ऐसा होता है कि रोज़े एक दिन आगे पीछे कर लेने की वजह से बहुत बड़ा जो नुकसान होता है, उसमें एक रोज़ा या तो घट जाता है या तो एक रोज़ा बढ़ जाता है। अगर कोई आदमी हिंदुस्तान में यहाँ के हिसाब से अगर रोज़ा रखा, वो उम्रे के लिए अगर गया या किसी काम से वहाँ पर गया, वहाँ अगर उसे ईद मनाना पड़ जाए तो उसका महीना जो होगा वो 29 का नहीं होगा। अगर हमारे हिसाब से 29 का होगा या सऊदीया के हिसाब से अगर 29 का होगा, तो यहाँ के हिसाब से रोज़ा रखने की वजह से वहाँ जाने के बाद वो 28 दिन के अंदर ही ईद करना पड़ेगा, जो कि हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर वहाँ के यहाँ के हिसाब से रोज़ा रख करके गया और वहाँ के हिसाब से अगर ईद बनाया, अगर वो महीना 30 दिन का अगर रमज़ान आ जाए, 30 रोज़े अगर मिल जाए, तो उसमें नुकसान ये होता है, वहाँ अगर रोज़ा रखा फिर यहाँ आ गया, वहाँ के हिसाब से अगर 30 रोज़े हो गए तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 पर 1 हो जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। ये किस वजह से हुआ? गलत फहमी की वजह से हुआ, गलत समझने की वजह से हुआ, सही तरीक़े से हिसाब ना लगाने की वजह से हुआ। ऐसे बहुत सारे नुकसानात इसके अंदर आते हैं। उलमा का इख्तलाफ इसके अंदर यकीनी बात है, हम यहाँ पर सोच करके देखना चाहिए। अगर किसी का कौल अगर इख्तलाफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, अक्सर हदीसों का इजमा क्या है, अक्सर हदीसें किस बात की तरफ जाती हैं, 1-2 हदीसें हो सकता है आ जाती हैं, उसे रख करके लोगों ने इख्तिलाफ करना, लेकिन बहुत सारे हदीसों को छोड़ने, बहुत सारे हदीस की खिलाफ वर्जी के माने में आ जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देख करके रोज़ा रखो और चांद देख करके रोज़ा छोड़ो। अब ये चांद देख करके रोज़ा रखने का माना मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी चांद को देख करके ही रोज़ा रखे। मैं चांद देखूं, जब तक ना देखूं तब तक मैं रोज़ा ना रखूं, या जब तक आप ना देखें तब तक आप रोज़ा ना रखें, ये मुश्किल बात है। चांद देख करके रोज़ा रखने का मतलब ये है कि हमारी बस्ती के अंदर से कोई भी आदमी चांद देखा, या बाजू बस्ती में अगर कोई आदमी चांद आकर के देखा है, वो आकर के अगर गवाही देता है, वो आदमी सच्चा है, मोमिन है, मुसलमान है, बालिग है, सच्चा आदमी है, अगर वो गवाही दे देता है तो उसकी गवाहियों को मान करके रोज़ा रख लेना चाहिए। ये ना मानने की वजह से अक्सर देखा जाता है, वो अहले हदीस के हैं उनकी गवाही हम नहीं लेंगे, वो हनाफ के हैं उनकी गवाही हम नहीं लेंगे, वो तमिल वाले हैं उनकी गवाही नहीं लेंगे, ये कर्नाटक वाले हैं इनकी नहीं लेंगे। ऐसी बात नहीं है। कहीं से भी अगर हमको चांद देखने की इत्तला मिल जाती है तो उसे मान लेना चाहिए और उसे रोज़ा रख लेना चाहिए। जैसे ही चांद देखे तो रोज़ा रख ले, जैसे ही चांद देखे तो रोज़ा छोड़ करके ईद कर लिया जाए। कई हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है कि सहाबा इकराम सफ़र में बाहर कहीं दूर दूर जा चुके थे, वो लोग आकर के इत्तला दे, यहाँ तक कि ईद के दिन भी रोज़ा रख लिया था मदीने के अंदर लोगों ने, सहाबा ने रोज़ा रख लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रख लिया था। बाहर से आने वाले मुसाफिरों का
बाहर से आने वाले मुसाफिर वो आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दिए कि कल शाम में वहाँ पर चांद देखा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा छोड़ा और सहाबा को भी रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया। वक्त चूँकि ज़्यादा हो चुका था तो दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मनाई है उसको। दुनिया में हम आज बहुत सारे इख्तलाफ कर लेते हैं। बताते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है उसके रस्सी को तुम मजबूती के साथ में थाम लो, इख्तलाफ ना कर लो। ये आपसी जो इख्तलाफात होते हैं इस वजह से कि उनकी बस्ती का चांद हमारे लिए नहीं, हमारे बस्ती का चांद उनके लिए नहीं, चांद सारी दुनिया के लोगों के लिए एक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए, तमाम लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए आखिरी नबी बन करके आए और क़ुरान भी क़यामत तक है, वो भी एक है, अल्लाह भी एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बता करके चले गए अल्लाह के नबी के पैगामात मेरे और आपके लिए बल्कि सारी दुनिया के लोगों के लिए क़यामत तक के लिए है। बस वक्त का फ़र्क होने की वजह से पूरे दिन को हम तब्दील कर देना। ज़रा सोच करके देखें कि आज तारीख़ कितनी है? 6 तारीख़ है आज। सारी दुनिया के अंदर भी 6 तारीख़ है। सारी दुनिया के अंदर जुमा का ही दिन है और तारीख़ भी 6 है। लेकिन रमज़ान के महीने में इस बात को क्यों नहीं मानते कि अरब के लोगों ने देख लिया, वो लोग रख लिए, हम नहीं रखेंगे। वक्त आगे पीछे होता है। वक्त के आगे पीछे होने की वजह से हम पूरे के पूरे दिन को छोड़ देना। 28 दिन अगर आ गए तो एक रोज़ा चले गया, 30 पर एक दिन अगर आ गए तो एक दिन इजाफा हो गया। तो फिर वहाँ लोग आकर के दलील पेश करते हैं अगर एक रोज़ा छूट गया है, कम हो गया है, उसे ख़ज़ा रख लेंगे। ख़ज़ा कब रखेंगे? रोज़ा ख़ज़ा कब करेंगे? उसके लिए कोई इल्लत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि अगर आप सफ़र में हो, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, बीमारी की हालत में हो, आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो ये ख़ज़ा रोज़ा होगा, रमज़ान के बाद उसे ख़ज़ा कर लेंगे। कोई भी इल्लत नहीं है, कोई भी उज़्र नहीं है, ना मुसाफिर हैं, ना बीमारी है, कोई भी चीज़ नहीं है। बस ये फ़िरक़ाबंदी करके इसकी वजह से आकर के एक रोज़े को छोड़ देना, बाद में चल कर के फिर उसे ख़ज़ा के मकसद से ला करके उसे रख लेना, ये कहाँ तक सच्ची बात है? बस गौर करने की ज़रूरत है। मैं किसी पर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, ज़रा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। तालीमात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हैं उस पर गौर व फिक्र करना है, सोचना है, तहकीक करना है। दूसरे दुनिया के तमाम मामलात में मैं और आप तहकीक करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रिसर्च करते हैं, अंधे बन करके उसे नहीं मानते हैं। जब शरीयत की बातें भी ऐसे आ जाते हैं, ये बातों के बारे में भी तहकीक कर लेना चाहिए। अगर दलील मिल जाए तो उसे यकीनन मान लेना चाहिए। कोई हदीस अगर नहीं आ जाती है, आपको मालूम नहीं था, आपके इल्म में नहीं था, उसे तहकीक कर लीजिए। तहकीक करने के बाद अगर मालूम हो जाए कि ये हदीस सही है तो फिर उसे अमल कर लेना चाहिए। उसे अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर के आना चाहिए कि उसे मज़हब का इख्तिलाफ या जमात का इख्तिलाफ या बस्ती का इख्तिलाफ समझ करके उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की आदत भी हुआ करती थी। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ बतौर दलील, यानी इंक्वायरी कर लेना चाहिए, तहकीक कर लेना चाहिए। बिला तहकीक मत मानो, बिला तहकीक मत मानो, आप तो उसमें तहकीक कर लीजिए। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी किसी के घर को जाए तो दरवाजे पर 3 मरतबा उसे सलाम करे। अगर उसका जवाब ना दे तो उस आदमी को चाहिए कि वो वापस चले जाए। गालिबन अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु से मिलने के लिए उनके घर गए। 3 मरतबा उन्होंने सलाम किया अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु। अंदर से जवाब नहीं मिला तो वो वहाँ से वापस निकल करके चले गए। बाद में उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु अंदर से बाहर आए, फिर तहकीक किया कि कौन आए थे, पता चला कि अबू सईद खुदरी आए थे। तो फिर अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु को ढूंढते हुए उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु गए और जाकर के अबू सईद खुदरी से पूछा कि आप ऐसा मिलने के लिए आए थे? हाँ मैं आया था। फिर आपने इंतज़ार क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि अगर किसी के घर पे पास जाए 3 मरतबा उसे सलाम करे, अगर वो जवाब ना दे तो वहाँ से तुम
چلے جاؤ، تو اس لیے میں وہاں سے نکل کر کے چلے گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، یہ بڑے تاجر تھے، یہ دوسرے کاموں کے اندر زیادہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے اور ایک دن آ کر کے بزنس میں چلے جاتے تھے، شاید اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حدیث ابھی نہ پہنچی ہوگی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا سچی بات ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سچی بات ہے یہ۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دلیل پیش کیجئے، جب تک دلیل آپ پیش نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پیش کریں گے، تب تک میں آپ کو مانوں گا بھی نہیں، ورنہ میں آپ کے اوپر ناراض رہوں گا۔ تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابہ کے پاس گئے اور صحابہ سے کہا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت میں فلاں جگہ مسجد نبوی میں بتایا، کہ آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ بہت سارے صحابہ اکرام نے کہا ہاں میں نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر کے گئے، تو صحابہ نے ان کو بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث مل گئی، یہ دلیل مل گئی، یہ بات واضح ہو گئی، یہ سچا پیغام مل گیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا اس کو۔ تو میں بھی آپ کو یہی پیغام دیتا ہوں، جو بھی حدیثیں، جو بھی آیات، اس کی تفسیریں، اس کی وضاحتیں ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں، اس کو تحقیق کریں۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ حدیث اگر ضعیف آتی ہے، ضعیف سمجھ میں آتی ہے، علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ بھی اگر بتا دی ہے، تو وہاں پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ صحیح ہے، کہنے والا کوئی بھی آدمی ہو، کہیں سے بھی حدیث آئی ہوئی ہو، تو اسے مان لینا چاہیے۔ دلیل ملنے کے بعد، گواہی ملنے کے بعد، حدیث صحیح ہے معلوم ہونے کے باوجود بس اختلاف کی وجہ سے اس کی بات میں نہیں مانوں گا، میری بات اسے نہیں مانے گا، وہ دوسرے بستی والا ہے، وہ دوسرے مذہب والا ہے، یہ کہہ کر کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے چھوڑ دینا ضروری نہیں ہے اس کو۔ اب اکثر لوگ یہ چاند کے مسئلے میں آ کر کے امیر کی اطاعت کی بات کو بھی بتاتے ہیں، اسے بھی دلیل بناتے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے اس کی بھی بات کو لا کر کے بتاتا ہے، میں بھی آپ کی بات کو مانتا ہوں، اگر امیر ہے، ہم نے اسے امیر منتخب کر لیا ہے، تو اس کی بات کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ بے حد ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لے کہ امیر کی بات کو کب ماننا چاہیے، امیر کی اطاعت کب کرنا چاہیے۔ کیا امیر حدیث کے خلاف حکم دے، قرآن کے خلاف حکم دے، جمہور علماء کے خلاف اگر حکم دے، کیا وہاں پر بھی ہم امیر کی اطاعت کو کرنا ضروری ہے؟ دوسرے کاموں میں امیر کی اطاعت ہم کو یاد نہیں آتی ہے، کیوں نہیں آتی ہے؟ صرف اسی چاند کے مسئلے میں ایک ہی آ کر کے رمضان شروع کرتے وقت میں امیر کی اطاعت کرنا ہے، اور عید کرنے کے لیے امیر کی اطاعت کرنا ہے، دوسرے کاموں میں امیر کی اطاعت کیوں یاد نہیں آتی ہے؟ امیر کی اطاعت ضروری ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے اوپر حبشی غلام کو بھی اگر امیر بنا دیا جائے، آپ اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کی مخالفت نہ کرو، بغاوت نہ کرو، یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، جمہور کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں آتی ہے، تو پھر اس کی بات کو وہاں پر ماننا، اتفاق کر لینا، یہ کہاں کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، رسول کی نافرمانیوں میں کسی بھی آدمی کی بات کو نہیں مانی جائے گی۔ کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اللہ کی اطاعت کے بعد ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کئی جگہ پر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ان کی ناراضگی ان کی ناراضگی ہے۔ کیا وہ شرک کی طرف دعوت دے تب بھی ان کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ اور اس کے
रसूल की नाफरमानियों की तरफ दावत दे, गुनाह की तरफ दावत दे, तब भी उनकी बात को मानना है। यकीनी तौर पर वहाँ उनकी बात को नहीं मानी जाएगी। वैसे ही अमीर की इताअत ज़रूरी है, लेकिन अमीर की बात, अमीर का हुक्म अगर शरीयत के खिलाफ अगर आता है, इख्तिलाफ अगर पैदा करता है, तो वहाँ पर मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है। बहाने अल्लाह के पास नहीं चलेंगे। और दूसरा, अक्सर लोग ये कहते हैं अमीर ने कह दिया, उसकी बात को मान करके हमने रोज़ा रख लिया और ईद कर लिया, अगर उसके अंदर गलती है, उसके अंदर गुनाह है, अल्लाह के पास हम नहीं जाएंगे, हम नहीं फंसेंगे, वो फंस जाएगा। ज़रा सोच करके देखो, अगर वाज़ेह तौर पर मालूम होता है सामने वाला गलत बात का हुक्म दे रहा है, वो कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ अगर मालूम होती है, तो वहाँ उसकी बात को हम मान लेना, उसे खुश करने के लिए इताअत कर लेना, अल्लाह को नाराज़ कर देना, क्या क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अज़ाब से बच पाएंगे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो मदीने में उन्होंने खुतबा दिया और तमाम सहाबा को मुखातब करके ये कह दिया, जब तक मैं अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करूं और दोनों की इताअत का हुक्म दूं, तो तुम लोग मेरी बात को मानो। अगर मैं इसके खिलाफ अगर हुक्म दूंगा तो आप पर मेरी इताअत वाजिब नहीं है उसको। तो बहरहाल बातें बहुत सारी हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, एक दलील पेश करते हैं, सब मुत्तफिक होकर के रहना चाहिए। याद रखो, सब मुत्तफिक कब रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किन कामों के अंदर रहेंगे? अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ में थाम ले। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अगर तुम्हारे दरमियान में किसी बात को लेकर के इख्तिलाफ आ जाए तो तुम क्या करना चाहिए? पहले कुरान की तरफ जाओ, कुरान में उस मसले का हल ढूंढो। अगर कुरान के अंदर वो मसले का हल अगर नहीं है तो शरीयत की तरफ जाओ, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ जाओ। ये दोनों के अंदर वो फरामीन आपको मिल जाते, तो इसके तहत आप इजमा कर सकते हैं। बस लोगों की रजामंदी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ये अलग अलग बातों को लेकर के जाना, ये दलाइल को लेकर के आना, ज़रा सोचने की बात है। सोच करके हिकमत अमली के साथ में काम करें, सिर्फ अक़ल को ही ना दौड़ाए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी ले ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू, चाँद देखे तो रोज़ा रख दो। ये बताना मेरा मकसद ये है कि हम चांद को देखने की हद तक इम्कान इस बात की कोशिश करें। एक ज़माना वो था कि एक बस्ती से दूसरी बस्ती को पैगाम पहुंचने के लिए ज़माना लग जाता था, दिन लग जाते थे, या कम से कम कई घंटे भी लग जाते थे। लेकिन आज वसाइल हमारे पास इतने ज़्यादा हैं कि सेकेंडों के अंदर इत्तला मिल जाती है, सेकेंडों के अंदर इत्तला मिल जाती है। वो हदीस, बल्कि हदीस नहीं है, बल्कि वो बाब है। क्या है बाब? वो लिकुल्लि बलदिन रुया, हर शहर के लिए एक मतला हुआ करता है। ठीक है, मैं अगर आपकी बात को मान लूँ, उससे मैं मुत्तफिक भी अगर हो जाऊँ, तो ये बताए कि शहर किसको कहते हैं, शहर की हद कहाँ से कहाँ तक है? क्या सिर्फ शहर पेरनम्बेट एक शहर है, गुड़ियातम एक शहर है, आम्बूर एक शहर है, बेंगलोर एक शहर अलग अलग है? तो अगर ऐसा मान लिया जाए तो शहर पेरनम्बेट वालों ने जो चांद को देखा है उसे गुड़ियातम वाले नहीं मानना चाहिए, गुड़ियातम वालों ने जिसे माना है उसे हम नहीं मानना चाहिए। ये शहर के बारे में अगर ले लिया जाए, चलो ज़रा उससे भी और वसाअत लेकर जाए, शहर को नहीं बल्कि सूबा ले लो। तमिलनाडु एक सूबा है, कर्नाटक एक सूबा है, आंध्रा एक सूबा है। अगर इसे सूबा मान भी अगर लिया जाए, चलो तुम्हारी बात को मैं मान लूँ, अगर इसे सूबा मान लिया जाए तो शहर मंगलूर कर्नाटक के हुदूद में आता है, बल्कि वो कर्नाटक का बड़ा मशहूर शहर भी है। मंगलूर में जब चांद को देख करके लोग इत्तला देते हैं, खबर देते हैं, फोटोस आते हैं, फ़ोन आता है, वीडियोस आते हैं, लोग आकर के बताते हैं, फिर भी शहर बेंगलुरु में नहीं माना जाता है, इसलिए कि नहीं वो अलग बस्ती है। अब फिर किस मुनासिबत से है ये? तमिलनाडु को अगर सूबा मान लेते हैं, पांडिचेरी के अंदर चांद देखा, कन्याकुमारी के अंदर चांद देखा, तो हम भी तमिलनाडु के अंदर हैं, फिर हम इसे क्यों नहीं मानते हैं? आंध्रा को अगर मान लिया जाए तो विजयवाड़ा, वहाँ पर चांद देखा जाता है, तो फिर आकर के हैदराबाद में अगर बताते हैं तो वहाँ पर उसे नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं?
کیا یہ شہر میں نہیں ہے؟ کیا یہ صوبے میں نہیں ہے؟ یہ سب کی سب بھی منمانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس کے فرامین اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہر ایک آدمی کو سرخم کر دینا چاہیے، ہر ایک آدمی کو بات کو مان لینا چاہیے۔ آپ بھی ذرا سوچئے، آپ بھی ذرا تحقیق کیجئے کہ دن کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ یہاں جو ہے دن، وہ دن وہیں پر بھی ہے۔ کیوں ہم اسے نہیں مان لیتے؟ چلو اگر تمہاری بات کو میں مان کر کے متفق ہو جاؤں، نہیں وہ سعودی والے ہیں، انہوں ایک دن پہلے دیکھے پہلے کریں گے، ہمیں ایک دن پیچھے دیکھے پیچھے کریں گے، چلو میں آپ کی بات سے متفق ہوں، میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، تو ہمارے کیلنڈر کو تبدیل کر دیں گے۔ ہمارے یہاں 6 تاریخ ہے، تو سعودیہ میں فون کر کے آپ پوچھ لے کتنے تاریخ ہے، وہاں پر بھی 6 ہے۔ امریکہ میں پوچھ لے کہ وہاں پر بھی 6۔ رات کے 12 بجے برابر جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں تاریخ بھی بدلتی ہے، دن بھی بدل جاتا ہے اس کے اندر۔ جب اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر چاند کے معاملے میں کیوں، عبادات کے معاملے میں کیوں، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات اور اطاعت کے اندر کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، بحث نہیں کر رہا ہوں، کسی پر کیچڑ نہیں ہے، کسی کو غلط نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، وہ پیغامات ہیں، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ لوگ دنیا کے جو کہتے ہیں یہ بات قرآن اور حدیث کے برابر ہے یا اس کے مخالف ہے۔ اگر مخالف ہے تو ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شریعت کے علم کو صحیح طرح سے تحقیق کرنے اور اسے عمل پیرا اپنی زندگیوں میں لے کر کے آنے، قرآن اور حدیث کی صحیح طرح سے اطاعت کرنے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے زندگیوں کو لگانے کی اللہ رب العالمین مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ونکم ونفعنا وإياکم بذکر الآیۃ الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔